A female report an episode of gross hematuria after running a marathon. She has no urine frequency or dysuria and denies flank pain. Her BP is 120/80. Serum creatinine is 0.6. Which one of the following would be the most appropriate diagnostic plan? A option is CT KUB, B is cystoscopy, C serial urine dipstick and microscopic analysis 1 week apart, D urine culture and sensitivity, E renal ultrasound. So kindly chat box में लिखें so that we can move towards the next question. So 6-7 candidates have answered. Yes, so C is correct one. Why? Why C is correct one? मैराथन के बाद हुआ है ना, तो ये फिजियोलॉजिकल भी हो सकता है ना, नॉट नेसेसरी के। तो हमें जो है रूल आउट करना पड़ेगा. So from this BCQs we know that glomerular disease जो है यस एक्सरसाइज की वजह से can present in many ways. नेफ्रोटिक, नेफ्राइटिक, RPGN के तौर पे, एसिम्प्टोमेटिक प्रोटीनयूरिया, हेमेचूरिया के तौर पे और क्रॉनिक किडनी डिजीज पे भी के तौर पे भी प्रेजेंट कर सकते हैं. तो जो कौन सी डिजीज है दैट कैन प्रेजेंट एज RPGN? आईजीए आ सकती है इनका, इनका हो सकता है एंटी-जीबीएम, एंटी-जीबीएम है, पोस्ट इन्फेक्शियस या पोस्ट पोस्ट इन्फेक्शियस हो सकता है, पोस्ट इन्फेक्शियस इन्फेक्शन एमपीजी. और कौन से जीएन हैं दैट कैन प्रेजेंट एज एन नेफ्राइटिक सिंड्रोम? नेफ्राइटिक में लूपस एमपीजीएन है, लूपस है, वेस्कुलाइटिस, आईजीए, आईजीए का है, एमपीजीएन का है, लूपस का है. आप पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल या इन्फेक्शियस रिलेटेड जीएन है वो भी पोस्ट प्रेजेंट. इन्फेक्शियस. जनरल मैनेजमेंट हम अगर ग्लोमेरुलर डिसीज से हैं तो काइंडली रीड दिस सिनेरियो. salt restrictions, यस तो कौन protein restriction, diuretics, यस तो कौन सिनेरियो पड़ेगा ये? AFR, कैनेडी कोई भी सिनेरियो पढ़ ले. 23-year-old university student presents to ambulatory care with generalized anasarca and ascites of 4 weeks duration. He had an ankle sprain 6 weeks back and was prescribed diclofenac for 1 week. Warm compresses and an ankle splint. Today BP is 120/75 and he has periorbital swelling and pedal edema. Kidney biopsy shows following light microscopic changes. Which one of the following features most likely supports the diagnosis? मैडम फाइंडिंग्स बताएं, कौन सा स्टेन है, क्या फाइंडिंग्स है? Light microscopy showing PAS stain है. अच्छे नहीं है ना, अच्छे नहीं है ना. HN आपको सेल्स अच्छे नजर आ रहे हैं, बिल्कुल क्लियर सेल्स नजर. तो अच्छे आ रहे हैं, लेकिन इसमें मेम्ब्रेन भी इतनी बुरी नहीं आ रही. हाँ, तो मगर ये अच्छे नहीं है. ठीक है. देन फाइंडिंग्स क्या है? Showing gloom which has patent capillary loops. ठीक है. और इसमें कोई मेसेंजियल हाइपरसेल्युलैरिटी भी नहीं है, नॉर्मल लग रही है मुझे तो ये. तो नो एंडोकैपिलरी और नो एक्स्ट्रा कैपिलरी एक्स्ट्रा कैपिलरी प्रोलिफरेशन. डॉक्टर साहिबा ऑप्शंस भी पढ़ लें. Albumin 2.3 gram per deciliter, cholesterol 250, 24-hour urinary protein excretion 6 gram, creat 1.4. Albumin normal 3.5, cholesterol 250, 24-hour urine protein 3.8, creat 1.1. Albumin 2.3, cholesterol 450, 24-hour urinary protein 5 gram, creat 2.6. Albumin 3.3, cholesterol 200, 24-hour urinary protein 2.5 gram, creat 4.1. Albumin 2.3, cholesterol 350, 24-hour urinary protein 6 gram और creat 0.9. E होना चाहिए इसका. Why not B? जो E कह रहे हैं चैट बॉक्स में बताएं. Why not B? क्योंकि एल्ब्यूमिन नॉर्मल है ना, हाइपोएल्ब्यूमिनेमिया होना चाहिए इसमें. मोस्ट लाइकली एमसीडी है इंसिड के साथ. तो एमसीडी है, कोई सा भी काज हो सकता है, जरूरी नहीं है कि प्राइमरी हो या सेकेंडरी हो. सेकेंड
ने हिंट दिया हुआ है, सेकेंडरी का इन्होंने हिंट दिया हुआ है, मगर वो प्रेजेंट जो करेगा, अगर नेफ्रोटिक सिंड्रोम के तौर पर प्रेजेंट करेगा तो एल्ब्यूमिन भी मरीज का कम होना चाहिए। बी ऑप्शन भी करेक्ट हो सकता था, मगर अगर उसका एल्ब्यूमिन कम होता तो। ओके, सो करेक्ट ठीक। आंसर इज बी। कोई और सवाल पढ़ ले। Forty years of 48 female, 40 years of female presented with the progressive generalized body swelling over the past 2 weeks. She noticed foamy, frothy urine, slightly decreased urine output since yesterday. On examination, her blood pressure is 110/70, normal JVP, dependent edema. Her serum creatinine is 0.7 milligram per deciliter. Urine analysis shows protein 4 plus and RB 1 to 2 RBC. Winchester main concerning further evaluation is corrected. C3 will be normal and C4 complement level will be abnormal. C4 will be low and C3 will be normal. C3 and C4 will be both normal. Pallor antibody will be raised. No further testing is required. So And kindly write in chat box. So इसमें जो है ना मल्टीपल आंसर्स आ रहे हैं, कोई बोल रहा है सी ई बी, सी ई बी। सो आप क्या सस्पेक्ट कर रहे हैं, पहले सस्पेक्ट क्या कर रहे हैं इस सिनेरियो में? एमसीडी। तो एमसीडी में आप जो है कम्प्लीमेंट लेवल करवाते हैं? सर कॉम्प्लीमेंट नहीं कराते, पर इसमें लिखा है कि एक ऑप्शन है नो फर्दर टेस्टिंग रिक्वायर्ड। तो अभी इसमें जैसे कि इसमें 4 प्लस प्रोटीन आ रहा है, तो हम क्वान्टिफाई नहीं करवाएंगे। 4 प्लस प्रोटीन का मतलब कितना है? मतलब नेफ्रोटिक पेन तो है उसमें ऑलरेडी, अभी तो पता चल रहा है। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ नेफ्रोटिक सिंड्रोम इन चिल्ड्रन क्या है? एमसीडी। MCD. एमसीडी को आप डायग्नोज कैसे करते हैं? कोई बच्चा आपके पास आ रहा है, आपने यूरिन डीआर करवा लिया, स्पॉट पीसीआर या 24 आवर आप नहीं कर पा रहे ना, टिपिकल पिक्चर है। टिपिकल पिक्चर आप क्या करते हैं? जो आप हम काम स्टार्ट कर देते हैं क्लिनिकल स्टेरॉइड्स बच्चों में डायरेक्टली। क्लिनिकल बस वो करते हैं, बाकी कोई इंटरवेंशनल कोई नहीं जो करते आप हैं। क्लिनिकल करते हैं ना, तो यहाँ पे भी क्लिनिकल ही करें ना। जो आप वहाँ पे फॉलो कर रहे हैं यही आप, ये चीजें आप यहाँ पे फॉलो करें। अगर इसमें कोई एबनॉर्मलिटी मिलती, हाइपरटेंशन में दे देता, क्रेटिनिन बढ़ा हुआ दे देता, तो आप लेवल करवा लें, C3 भी करवा लें, C4 भी करवा लें, एसो टाइटर भी करवा लें, और जो आपको अच्छा लगे वो आप करवाएंगे, मैं आपको साथ दूंगा।